بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد۔ محترم صدر علی قدر چمن کاشف کے بڑے اور چھوٹے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ آج کے اس تاریخی دن کو مؤرخ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے گا کہ آج پھر کچھ وقفے کے بعد اس کے فرزندوں کا قافلہ جامعہ آ پہنچا ہے۔ ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ آپ تمام کی آمد پر جامعہ کا ذرہ ذرہ آپ کے استقبال میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کا ترانہ گنگنا رہا ہے۔ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اسی کے فضل و کرم سے ہی اس اجلاس کا انعقاد عمل میں آ سکا۔ اس 2 روزہ 65 سالہ اجلاس تعلیمی و دستار بندی کے موقع پر میرے مقالے کا موضوع ہے میرا پیام ابناء کاشف کے نام۔ حضرات، آج اس اجلاس کو دیکھ کر جس میں فرزندان کاشف اپنے اپنے مدارس اور علاقوں کی نمائندگی فرما رہے ہیں، یہ بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم الحمدللہ ندوۃ العلماء کی تحریک اور فکری جامعہ سے وابستہ ہے۔ جامعہ کا تعلیمی و تربیتی نظم و نسق دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نہج پر قائم ہے۔ بانی جامعہ حضرت مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد قدیم صالح اور جدید نافع پر رکھی۔ جامعہ کا نصب العین خذ ما صفا و دع ما قدر، اچھی بات لو اور بری بات چھوڑ دو پر ہے۔ جامعہ کی نسبت ادارہ کاشف العلوم مرکز دعوت و تبلیغ دہلی کی طرف ہے۔ سابق ناظم جامعہ بانی جامعہ کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔ بڑے اور چھوٹے بھائیوں، درختوں کو ان کے پھلوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم ایک درخت ہے تو آپ اس کے پھل۔ کاشف العلوم کے بارے میں کوئی اپنی رائے فرزندان کو دیکھ کر ہی قائم کرے گا۔ آپ اچھے تو کاشف العلوم اچھا۔ کاشف العلوم نام ہے چند مقاصد کا: دینی خدمت، دینی درد، دین کی حمایت و نصرت، تصنیف و تالیف، درس و تدریس، امام و خطابت کا۔ محترم سامعین، آج ہم تمام مدتوں بعد پھر کاشف العلوم میں اکٹھا ہوئے ہیں جہاں ہماری عمر کے بہترین اور خوشگوار دن گزرے۔ آج ہمیں وہ دن بھی یاد آ رہے ہیں، وہ آپس کی نوک جھوک اور پھر ہمدردیاں، وہ یہاں کے صحن اور میدان کے کھیل کود، وہ یہاں کے رکوع و سجود، وہ استاذوں کی شفقتیں اور کبھی جھڑکیاں۔ کیسی مٹھاس اور کیسی لذت تھی اس وقت کی تلخیوں میں، کاش وہ زمانہ پھر لوٹ آتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مقام کو جان لیں، عرفان نفس کا سبق حاصل کر لیں تو انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ کاشف العلوم ہمارا ہے، ہم بھی اسے اپنا سمجھے، محض زبان سے نہیں بلکہ زبان عمل سے۔ حضرات، آج مادر علمی میں خاندانی نسبت اور تعلق کے بغیر جمع ہونا اور پھر رخصت ہونا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ تحت العرش منہم رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ کا مصداق ہے۔ اس عارضی جدائی کے بعد یقیناً نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون پر ہماری زندگی قائم رہی تو جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں ملنا نصیب ہوگا۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ معزز بھائیوں، نیک اور سعید اولادیں یقیناً اپنے ماں باپ اور اپنے
उस्ताजों की उम्मीदों का मरकज, आंखों की ठंडक और दिलों का सुकून साबित होती है। ये जामे मस्जिद, ये जामिया, उनके दरो दीवार और साहिबे दिल बुजुर्गों से मंसूब इमारतें हमें कह रही है, पैवस्त रह शजर से उम्मीदें बहार रख, पैवस्त रह शजर से उम्मीदें बहार रख। फर्जंदो, इन बाबरकत लम्हात और सातों में तोहफतन आपको हजरत लुकमान की नसीहतों का मजमुआ पेश करता हूँ। ऐ बेटे, अल्लाह के साथ शिरक मत करना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, माँ बाप का शुक्र अदा करते रहना। ऐ मेरे बेटे, नमाज ठीक से पढ़ा कर और भलाई की दावत दिया कर और बुराइयों से रोका कर, और कोई तकलीफ पेश आए तो सब्र किया कर। ये बातें अजीमत की है और लोगों से मुंह चढ़ाकर तकब्बुर से बात मत कर और न जमीन पर अकड़ कर चल। अल्लाह किसी इतराने वाले, अपनी बड़ाई हाँकने वाले और घमंडी को पसंद नहीं करता। रफ्तार और गुफ्तार में एतदाल पैदा कर, आवाज को दुरुस्त रख। मोहतरम फर्जंदाने जामिया, जामिया के क़याम पर 65 साल का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान तालिबान उलूम नबूवत के कई काफिले आए, यहाँ खैमदन हुए, अपनी इल्मी प्यास बुझाई और दूर दराज इलाकों में दीन की खिदमत में मसरूफ हो गए। आज फिर कुछ लम्हों के लिए बिखरे हुए मोती, लालो गोहर यहाँ जमा है। दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए इस इजलास से काम करने की राहें पैदा करे और हम यहाँ से जमाने के तकादों को पूरा करने का आज़म लेकर जाए। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उलमा का काम सबसे ज्यादा नाजुक और अजीम है। मौलाना फरमाते हैं, मैं नहीं जानता कि इस वक्त दुनिया की किसी जमात का काम इतना नाजुक, वसी और अहम है। मोहतरम सामाईन, आज के इस नाजुक दौर में नस्लों की इर्तिदाद से हिफाजत और रोकथाम फुजलाए मदारिस की अहम जिम्मेदारी है। इसलिए महल्ला महल्ला, गांव गांव, तालीम से दूर इलाकों में हम मकातिब कायम करें। मकातिब के निज़ाम को मजबूत करना, स्कूल और कॉलेज की राह से आने वाली गुमराहियों को रोकना इस वक्त उलमाए किराम की जिम्मेदारी है। मोहतरम सामाईन, जामिया की ये इल्मी तरक्की, इल्मी बहार, एक नन्हे मुन्ने पौधे से तनावर दरख्त बन जाना, उन करम फरमाओ और मुखलिसों की हमवक्त फिक्र, ये जामिया और जाफशानी का नतीजा है। हमा वक्त फिक्र और जाफशानी का नतीजा है कि जामिया ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। कहाँ ये जामिया जिसकी इब्तिदा चंद तलवाए आलिमियत और चंद तलवाए शोबे हिफ्ज से हुई, और आज वो बाबरकत लम्हात भी सामने हैं कि कल हजारों तालिमान उलूम नबूवत को दस्तार से नवाजा जा रहा है। बिला शक व तरद्दुद मैं इस हकीकत का बरमर्रा इजहार करता हूँ कि जामिया इस्लामिया काशलूम से फरागत के बाद खासी तादाद तदरीस के साथ साथ मसाजिद में इमामत व खिताबत की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, और बाज़ दीनी मदारिस में अहम ओहदों पर फाइज है, और बाज़ काशवी तलबा ने मदीना मुनव्वरा और रियाज की दीनी यूनिवर्सिटियों में दाखिला लिया, और बाज़ फुजला असरी स्कूलों और कॉलेजों में अहम ओहदों पर फायज होकर तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अब दावत व तबलीग से वाबस्तगी के साथ साथ रिज़्क़ हलाल हासिल करना भी आसान और सहल हो चुका है, और अबनाए काशिफ अपने आप को सच्चा और अमानतदार ताजिर अंबियाए किराम, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा के जुमरे में शामिल कर रहे हैं। मोहतरम फर्जंदान, इस इजलास की हैसियत एक हसीन व जमील गुलदस्ते की सी है जिसमें अनवा व अक़साम के फूल होते हैं। उलमा और हुफ़्फ़ाज़ का ये काफ़िला मुख्तलिफ ओहदों और हैसियतों के हासिल फर्जंदान मादर इल्मी में जलवा फरोज है। इस मौके से बड़ी नासिपासी होगी अगर हम उन करम फरमाओ, मुखलिस और मुशफ़िक़ असाज़ाए किराम को याद न करें जो आज हमें अपनी इस महफिल में नजर नहीं आ रहे हैं।
यकीनन आज का ये इजलास मरहून मिन्नत है बानी जामिया मरहूम सुदूर व अराकीन मजलिस आमिरा साबिक नाज़िम जामिया मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन फारूक नदवी रहमतुल्लाह अलैह, मुहतमिम जामिया मौलाना मोहम्मद मुजीबुद्दीन साहब कासिमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना काजी नुसरतुल्लाह मुफ्ती मोहम्मद ईसा नदवी रहमतुल्लाह अलैह और साबिक नाजिर कुतुब खाना अलहाज अब्दुल सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह का। यकीनन उनकी रूहें इंशाअल्लाह इस इजलास से सईद और नेकबख्त होंगी और हम तमाम का हदिया सलाम और मोहब्बत उनके खिदमत में फरिश्ते पेश कर रहे होंगे। मौजूदा जिम्मेदारान, ओहदेदारान, अराकीन मजलिस आमिला, असातिज़ाए किराम और ख़ास तौर से नाज़िम जामिया मौलाना अब्दुल वहीद हलीमी नदवी खुश होंगे। फर्जंदान काशिफ यकीन हर बाप, यकीन हर उस्ताद अपनी औलादों और तालिब इल्मों की तरक्कियों से खुश होता है और अपनी आंखों को उनसे ठंडक और उनकी तरक्कियों से खुश होता है। आज नित नए हालात आपके मुंतज़िर है। आप अपने दर्स, अपनी तहरीर व तकरीर के ज़रिए इन हालात को बदल सकते हैं। फर्जंदान काशिफ, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी शफ़क़तें और इनायतें आपको हमेशा हासिल रहेगी। ना उम्मीद ना होना, ना उम्मीदी ज़वाल इल्म व इरफा है, ना उम्मीद ना होना, ना उम्मीदी ज़वाल इल्म व इरफा है। अलविदा अलविदा अलविदा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।